The dignitaries are awaited, but since we already have Dr. Sachidanand Joshi, who is member secretary and a learned scholar from IGNCA with us, and we also have Padam Shri Dr. Vikramjit Sahane, member of Parliament Rajya Sabha, also with us. So we'll start the inaugural session by lighting the lamp, and a few other dignitaries will join, but maybe in a while. So we'll not wait, and we'll proceed. So my request to each one of you is please stay seated. Thank you so much. सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रदा शिवानुजा पुस्तकप्रज्ञानमुद्रा Very good evening. It's almost 4:45, and welcome each one of you to the monsoon edition of the Delhi Literature Festival. I am indeed very privileged and honored to have the presence of Padam Shri Dr. Vikramjit Singh Sahane Sahab, Member of Parliament and Honorable Chairman of the Sun Foundation. I have also the privilege of having with us Dr. Sachidanand Joshi Sahab, who is Member Secretary, IGNCA, and he's a scholar. Just a small background of the Delhi Literature Festival, sir. In 2013, we started this journey with the support of the then Delhi government. And every year we have organized the Delhi Literature Festival once a year. This year also we did it sometime in March at the India Habitat Center. And there were a lot of requests from our patrons that Delhi Literature Festival should not be confined to an annual event. And therefore we thought of doing a monsoon edition. And I'm very privileged to inform you that some of the bestseller authors, not only from Delhi, but from across the country, like the Dr. Sudha Murthy, Honorable Member of Parliament herself, and also the chairperson of the Infosys Foundation. She has been writing books especially for the younger audience and the kids. She has confirmed to be here with us tomorrow. Then we also have Dr. R. Balasubramaniam, whose book was released by Honorable Prime Minister himself. He's also coming traveling tomorrow. We have Abhay K., who's a diplomat, seasoned diplomat, and he's been writing books on monsoon, on the seasons, and he's also written a book on Biharis. I hope he's around. Abhay is signing books. And then we also have diplomats like Vikas Saroop, whose book Slumdog Millionaire became a big Bollywood or Hollywood film. So he's also confirmed to be with us tomorrow. Then we also have some poetry sessions and of course a musical session. So thank you once again, each one of you, and especially Dr. Sahane, who's made it to be with us today. I've known him for some years. He has been a very active member of the Indian industry. He has been a past president of the International Chamber of Commerce. And of course, he's a philanthropist. He's an educationist. He's a social worker. And of course, he dwells into a lot of spirituality. So, Dr. Sahane, welcome to the Delhi Literature Festival Monsoon Edition. We also have Dr. Sachidanand Joshi. जोशी साहब को मुझे कई बार सुनने का मौका मिला, and I found him to be a very, very impressive speaker. So Dr. Joshi is a scholar. He is the member secretary of the Indira Gandhi National Center for Arts. And Dr. Joshi in 2013, our first festival was at the Indira Gandhi National Center for Arts at the earlier campus, which I'm sure should reopen soon. Nahi, abhi chal raha hai kaam. So thank you, Dr. Joshi, for being with us. So can we have a round of applause for both the gentlemen? I have been told that the other dignitaries are coming because the budget was announced, and the so-called BJP leaders have been given the instructions to meet their
stakeholders and the people and talk to them about the budget. So they're all involved in some kind of press conferences on the budget, but they have told us that they'll be joining us soon. So I could not have let the other dignitaries wait and the audience wait, so we thought we'll start. And to start with, what we'll do is we'll have a small ceremony where we'll felicitate our dignitaries with a patka. So I'll request Ms. Bharti Bhargava, who is also one of the founder directors, yellow wala, to felicitate Mr. Dr. Vikramjit Sahane, Padam Shri. Thank you. I also request Dr. Nasir Jamal to formally felicitate our other dignitary, Dr. Sachidanand Joshi. Thank you. Arun ji, आइए आ गया जी. So friends, as I was talking about our journey in the Delhi Literature Festival, many times people have asked us, who are the people behind this festival? And I told them that what you see here, some sitting here and some sitting right in front of us, they're all freelance professionals who voluntarily participate in organizing this with the idea of promoting literature, with the idea of promoting the practice of good books, book reading. And we just had a very young author, sir, 13-year-old. Oh, he's written 4 books. Is he still there or he's moved? I think he's moved with his parents. He's written a book, something like Harry Potter. It's like a fiction. At 13 years, he's written 3 books, 3 or 4 books. So he's just stepped out. So we have all kind of people coming here from all walks of life to celebrate literature. And as I mentioned, I'm indeed privileged and honored to have the presence of Dr. Sahane and Dr. Joshi. And also I'll mention that there are some other sessions where we have a session by Dr. Deepak Kumar Jaiswal. He's also a former bureaucrat and author who will be in conversation with Dr. Rama Pandey immediately after this session. And then we also have Mukul Kumarji, who is a very senior officer with the Indian Railways, and he's also an author. So he'll also be in conversation on his books. And then we have some session on poetry. And just to inform our dignitaries and the audience that we have kept the Delhi Literature Festival very inclusive. And there are some of the sessions which are very subjects which are very topical. And I just wanted to draw your kind attention to this book, very interesting book written on Dr. Rama Pandey is here. Dr. Pandey. Ji, please come. Thank you so much. Be careful. Ji. Dr. Rama Pandey, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग शाम को डॉक्टर रमा पांडे को ही टेलीविजन पे देखते थे और यूं ही शाम गुजर जाता था. So Dr. Pandey, thank you so much for being with us. And as I was mentioning about the sessions tomorrow, I wanted to have the kind attention of our dignitaries on the stage and the audience that there's a book written on Maya, Modi and Azad, Dalit politics in the time of Hindutva. This is another very interesting story, and we are having this discussion tomorrow. Then we have session on love in time of hate by Rakshanda Jalil. It has got a lot of communal flair, but it will also tell us the way forward and how as a nation we can live peacefully and together. So, and then we have a musical performance. Then we have this book by Dr. R. Balasubramaniam tomorrow, which is Power Within, the Leadership Legacy of Narendra Modi, which was released by the Honorable Prime Minister himself. So he'll also be joining us tomorrow. And of course, I mentioned about Vikas Sharoop, his new book, The Girl with 7 Lives, is being discussed tomorrow. And then we have the last session by the Honorable Member of Parliament, Ms. Sudha Murthy, on several of her books. In fact, her office insisted that there's a book being launched in August, which she wants to have a discussion on tomorrow. So that will also be a part of this festival. So thank you all once again. And before wasting a lot of time, I'm all waiting to hear both these gentlemen, these scholars sitting here. And I'll request first of all
Dr. Sachidanand Joshi, Member Secretary, IGNCA, to please say some words on this occasion. Over to you, sir. Namaskar and congratulations to Delhi Literature Festival for organizing this beautiful festival, that too in the monsoon season. Although we all are desperately waiting for the monsoon to happen in Delhi, we only see photographs of monsoon happening in Mumbai and recently in Pune. But in Delhi, it's only umas, umas and umas. Andar bhi garmi, bahar bhi garmi. Kahan jaye, garmi hi garmi. So that way we all are here. Most respected Dr. Sahani, other dignitaries. It has been Ajay ji's insistence that I should come. So I'm here. I have not come here to sort of recite anything of mine, but I would like to only congratulate. But since this is a literature festival, एक दो कविताएं सुना के आपको झिला देता हूँ, क्योंकि साहित्य की बात हो और साहित्य ना हो तो अच्छा नहीं लगता. इसके पहले भी आपका एक सेशन हो गया था कविताओं का ही, बट स्टिल आई थॉट कि कविताएं तो कभी भी चल जाती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि कविताएं आपके साथ शेयर कर लेना चाहिए. ये जो मौसम है, ये बरसात का मौसम है और यहाँ पर बादल आते हैं. लेकिन एक कविता है जो हम सबकी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैंने लिखी है, और उसका शीर्षक है क्लाउड और बादल. उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी, अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो. सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते और फोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे वापस पा सको. हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का. लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं. याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से, कहाँ चली गई मेरी दादी, और पापा मुझे बहलाते हुए कह देते, दादी उधर दूर बादलों में चली गई है. और वो देखती है मुझे वहाँ से. उसके कुछ दिन बाद नाना जी के जाने पर भी यही बात तो कही थी माँ ने, और माँ पापा ही क्यों, मैंने भी तो यही कहा था नन्हे अन्नू से पापा के जाने के बाद कि वो देखते हैं तुम्हें दूर बादलों से. और तब नन्हा सा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे, ऊपर हाथ उठाकर और आसमान की तरफ इशारा करके बोलता था बाबा. सब कुछ कितना सहज, कितना सरल था. बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें. तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है. ज़रूरत पड़ने पर हम ले आते हैं वहाँ से अपनी खोई बातें. कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिससे वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना और दादी. पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, बादल थोड़ी है. हम सब की दोस्ती आपस में कम हो गई है, फेसबुक पर ज़्यादा हो गई है. एक शेर है, ज़िंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं, भीड़ है क़यामत की और हम अकेले. एक होली में ऐसा हुआ साहब, आजकल होता यह है कि गुलाल लाया जाता है तो हर्बल गुलाल लाया जाता है ताकि आपको रिएक्शन ना हो. लेकिन मज़े की बात यह है कि हर्बल गुलाल आप लाते ज़रूर हैं, पर सामने वाला तो अपना ही गुलाल लाता है और वो आपको वही लगाता है, और आपको मजबूरी में हर्बल गुलाल उसे लगाना पड़ता है. लेकिन ऐसा पिछली 3-4 होलियों से हो रहा है कि हम 3-4 पैकेट हर्बल गुलाल के घर में ला के रखते हैं और एक चुटकी गुलाल भी खर्च नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी होली हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही खेल लेते हैं. मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों के बदन पे कभी भी कोई गीला रंग चढ़ा हो होली का. हज़ारों मैसेज सुबह से शाम तक आ जाते हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी आपके शरीर पर कोई नहीं छिड़कता. तो इसलिए एक बार एक कविता मुझे इसलिए सूझी तो मैंने लिखी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ. अपनी अजीब दुनिया. फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने
रच डाली है अजीब सी दुनिया अपने ही इर्द गिर्द, अपने पर केंद्रित, जहां मैं हूं अपने ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पढ़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें, और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं अपने आप से बात करता, अपने जरिए ही दुनिया को जोड़ता और घटाता। दूसरे भी जो हैं वो भी सिर्फ मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सब के सब एकाकी। अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद संदेश और टिप्पणियों को बनाते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। अपनी पसंद संदेश और टिप्पणियों को बनाते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब। कोई नहीं है इन सब में ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चार दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर कभी गले मिलकर दे बधाई, कभी आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए। महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन, भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतर्जाल में खुद से ही अजनबी हो गया हूं, खुद से ही अजनबी हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी, थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली वेरी वेरी लवली एंड आई think it has made the mood of the hall. Friends, I'm indeed privileged to introduce to you amongst us we have a very senior leader of the BJP and he's also Vice Chairman, Honorable Vice Chairman of NDMC, Shri Satish Upadhyay ji. Can we have a round of applause for him? Satish ji has been involved with the promotion of literature for a while and he was also there with us for the last year festival. और जब मैंने उनसे कहा कि सर आपको आना है तो उन्होंने कहा अजय मेरे किताबों का क्या होगा। मैंने कहा बस इसीलिए आपको बुला रहे हैं ताकि दो शब्द आपके किताबों से। हमारे बीच हमारे भाई दीपक तनवर वाल्मीकि जी भी बीच में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले 2-3 दिन में आपका जन्मदिन भी है, एडवांस में बधाई 2 अगस्त को जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भारती जी से कि पहले सतीश जी को पटका पहना के एक बार फॉर्मली फेलिसिटेट करें। येलो वाला जी। चूँकि साहब हमेशा समय पे आते हैं हमारे सतीश भाई जी, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँ माननीय सतीश उपाध्याय जी से कि 2 शब्द अपने किताब के बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो अजय जी आपको बधाई देना चाहता हूँ कि साहित्य और लिटरेचर किसी भी समाज सोसाइटी को अगर आपको समझना है, किसी देश को समझना है, तो आप उसके लिटरेचर से, उसके साहित्य से ही आप समझ सकते हैं। ऐतिहासिक हो, भावनात्मक हो या समसामयिक घटनाओं पर आधारित हो, साहित्य है जो पूरे देश के ताने बाने को आपके सामने लेकर के आता है। एक ऐतिहासिक साहित्य है और दर्शकों में साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है अलग अलग घटनाओं के आधार पर। समय समय पर घटनाएं होती हैं, साहित्य भी बदलता है। घटनाएं और साहित्य दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। और उसके सबसे बड़ी जो कड़ी है वो है लेखक। अगर वो लेखक ना हो, वो साहित्यकार ना हो, क्योंकि जिसके अंदर भाव हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वही साहित्य का निर्माण भी करता है। और अगर वो लेखक ना हो तो ये टेलीविजन भी ना हो, वो लेखक ना हो तो ये सिनेमा जगत भी ना हो, ये लेखक ना हो तो ये ब्लॉग भी ना हो, ये लेखक ना हो तो पूरे समाज का हमारा जो
प्रतिबिंब है, दर्पण है, वो हमारा साहित्य और साहित्यकार हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो लाइफलाइन है, वाइब्रेंट जिसको कहते हैं, वो है साहित्यिक उत्सव। अगर साहित्यिक उत्सव ही नहीं होंगे, प्लेटफॉर्म ही नहीं होंगे, तो जो नया घटित हो रहा है वो आपके सामने आएगा कैसे? डिजिटल का जमाना है और सब लोग इंटरनेट, मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब हैं, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों मुझसे अखबार नहीं छूटता। आज भी पता नहीं क्यों किसी के पुस्तक के विमोचन में जाएं तो पुस्तक खरीदे बिना मन नहीं मानता। ये हमारे अंदर का मन है, ये अंदर की जो भाव हैं वो हैं। जब तक आप उसको देख नहीं लेते, जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते, तब तक ये बात सही है कि हमारे जीवन की आपाधापी में पूरा जीवन, जिसको कह सकते हैं हम, पूरी तरह से हेवायर है। और इस कारण से क्या करना, कहाँ जाना, कैसे करना, ये सारे भाव हैं। ऐसे ही मैंने गत वर्षों में चलते चलते जीवन के जो अनुभव आए, जो घटनाएं घटित उस समय हुई होंगी, तो मैं कभी लेखक तो था नहीं, ना ही साहित्यकार था। जैसा इन्होंने परिचय कराया, मैं तो राजनीति में हूँ छात्र संघ के समय से, लेकिन सही मायनों में मैं राजनीतिक उस तरह का पॉलिटिशियन हूँ नहीं, वो मेरे मन और भाव में नहीं है। तो कहीं ना कहीं से वो साहित्य ने जन्म लिया और देखते देखते ऐसे ही अचानक मन में आया। और मुझे याद है एक दिन कि 30 दिन के अंदर 32 कविताएं मैंने लिख दी। और कुछ ऐसा जुनून हुआ कि एक दिन सुबह 5 बजे उठकर लिखी, दोपहर में लिखी, रात को किसी के मैरिज के फंक्शन में गया, ट्रैफिक में अगर फंस गया तो बैठे बैठे लिखी, और सारी की सारी मैंने व्हाट्सएप पर ही लिखी है, क्योंकि वही आसान था, बैठे बैठे लिखते रहे। तो जब लिखा है तो किसी को, आपके जैसे किसी को दिखाया तो उसने कहा क्या करते हो? एक दिन मेरी, थोड़ा 2 मिनट है ना, एक दिन मेरी डॉटर ने मुझे पकड़ लिया। बहुत प्यार करती है मुझे, डॉटर्स तो आप जानते हैं कैसी होती। क्या डैड आप ये हर समय ये फोन पर लगे रहते हो? अब कहीं 2-4 बार टोका उसने, तो मुझे भी लगा कि कहीं इनके मन में मैं भी फोन पर क्यों देखता रहता हूं। तो मैंने उस दिन उसको दिखाया। मैंने कहा बेटा ये मैं लिख रहा हूं। जब उसने पढ़ा, देन शी सेड, दिस इज यू हैव रिटन? आई सेड यस आई हैव रिटन। एंड देन करते करते वो 50-51 कविताएं हो गई, और उसका शीर्षक मैंने लिखा जिंदगी चलते चलते। और जिंदगी चलते चलते में जितने भी अनुभव जीवन में आए हैं, जीवन की तमाम घटनाओं को हमने देखा है, जीवन में जिस प्रकार के द्वंद्व आपके जीवन में हैं, अनुभव आपके जीवन में हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, तो मेरी कविता के सारे शीर्षक जिंदगी के इर्द गिर्द ही हैं। उसमें से चूंकि साहित्य का ऐसा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी समय से इसका विमोचन भी पेंडिंग है, उसका भी कुछ कारण है। उस कारण से अमेज़ॉन पर ये आ गई। टी सीरीज़ ने मेरी ही आवाज़ में इसको रिकॉर्ड भी किया है। तो एक कविता इसमें से सुना देता हूँ, मुझे लगता है ज़्यादा समय आपका लेता नहीं मैं। और एक कविता है, वैसे इसके जो अशोक चक्रधर जी ने इसका प्रीफेस लिखा है, जिंदगी चलते चलते। वैसे इसके जो शीर्षक हैं आपको ध्यान में आएगा, हमारी जिंदगी में सबको, मेरी कोई भी कविता मैंने नेगेटिव नोट पर नहीं समाप्ति की है, इसका थोड़ा मेरे को ध्यान मैंने रखा है। जैसे हमारे जीवन में दोहरापन हम सब लोग जानते हैं, देखते होंगे और अनुभव में भी आता होगा। पाखंड, भ्रम, किस किस तरह के भ्रम हमारे जीवन में रहते हैं। समय, एक कविता में समय पर आपको जरूर सुना देता हूं। शून्य, स्वार्थ, मंजिल की तलाश। हमारे जीवन में उथल पुथल बहुत होती है, तो एक कविता है उथल पुथल पर भी है। एहसास, नफरतें, गलतफहमियां। ये गलतफहमियां जो है ये टी सीरीज ने रिलीज भी की है, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो उन्होंने उसका वीडियो वर्जन इसको रिलीज किया है, गलतफहमियां। तो
ऐसी तमाम कविताएं हैं। तो एक बस कविता समय पर है, वो मैं आपको सुना देता हूं। समय समय गूंगा नहीं बस मौन है। समय गूंगा नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। देखता रहता है लोगों की हकीकत को, देखता रहता है लोगों की हकीकत को, वक्त आने पर देता है नसीहत लोगों को। समय बोलता नहीं बस मौन है, समय की गति को कोई जान ना पाया, समय की अति को कोई जान ना पाया। रुकता है अपनी रफ्तार से, चलता है अपनी रफ्तार से, न बांध पाया कोई न जान पाया कोई। क्यों समय आहट नहीं करता, बस मौन है। ये कहां गया? बस मौन है। समय की निगाहें बड़ी पैनी हैं, इसकी दिशाएं बड़ी टेढ़ी हैं। ये दौड़ता है कभी आंधियों की तरह, तो कभी थम जाता है जिंदगी में अंधेरों की तरह। इंसान समझ नहीं पाता समय क्यों नहीं बातें करता, बस मौन है। समय का सब कुछ निश्चित है, सांसों का पल पल सुनिश्चित है। जीवन का आना निश्चित है, जीवन का जाना निश्चित है। बहता रहता है समय, किसी का नहीं होता, कभी तेरा होता है और कभी मेरा होता है। कुछ पल हम चाहते हैं कि रुक जाए, कुछ पल हम चाहते हैं कि समय रुक जाए। कुछ घड़ियां ऐसी हों कि जो थम जाएं, पर समय नहीं सुनता। शायद बहरा है, नहीं इसे गूंगा न समझो, यह सिर्फ मौन है। तो आओ फिर जी लेते हैं इस पल को, न रोकें न टोकें न व्यर्थ गवाएं। समय के साथ चलकर कुछ निशान छोड़ जाएं, जो आने वाले समय की उम्मीद बन जाएं, दुनिया को एक सुनहरा कल दे जाएं। आओ हम भी समय की धारा में बह जाएं, उसके मौन को समझें और पल पल को एक यादगार पल बनाएं। समय गूंगा नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश उपाध्याय जी, बहुत खूब, बहुत खूब। Ladies and gentlemen, I'll take this opportunity to request Dr. Vikramjit Sahane Padam Shri, and he's also member of Parliament, Honorable Member of Parliament from Rajya Sabha and Chairperson of the Sun Foundation. मुझे लग रहा है कि साहने साहब पूरी किताब ही शायद लेके आए हैं आज अपने साथ। है? नहीं सर, हमारे पास समय है, आज शाम हम आपके साथ डेडिकेटेड हैं। इट विल बी एन ऑनर। एंड साहने साहब के साथ मैंने पर्सनली कई वक्त साथ काम किया इंडस्ट्री में, और जैसे मैंने बताया कि साहने साहब हैज़ बीन अ फिलांथ्रोपिस्ट, ही इज़ ऑल्सो सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट, एंड ही इज़ बीन लॉट ऑफ वर्क in the field of social space. So he's with us. Thank you so much, sir, for being with us. And over to you, Sahane Saab. Thank you, Ajay ji. My dear friend and brother Dr. Satish Upadhyay ji, हमने अभी उनका I didn't know this side of Satish Upadhyay ji, and Dr. Sachinand Joshi ji, ma'am, and Ajay ji I have known for over 10 years. And dear friends, I think I would say dear friends and very good souls, क्योंकि आज के समय में जैसे इन्होंने वक्त की बात की कि गूंगा है, मौन है, पर वक्त पे बताता है किसका कौन है। तो आप लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं जो आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं, ये कोई आप सॉरी टू से कॉकटेल पार्टी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो आप सैकड़ों हज़ारों लोग आ जाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ को, मेयारी चीज़ को, इंट्रोस्पेक्शन के लिए लिटरेरी वर्ल्ड की हमारी सोसाइटी से जो कमी हो रही है वो भी एक इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। You know, art that has sculpted the conscience
kindled the hearts and woven introspection and imagination into the tapestry of humanities in every era. From great texts like Indian Mahabharata to the Greek Odyssey, it was all the power of the written word that turned life into story and vice versa. I think literature transcends the boundaries and of time and space, offering a mirror to the society and a window and solace, I would say, to the soul. You know, Shakespeare, the Bard of Avon, once wrote, quote, "My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never to heaven go." This simple yet profound statement really summarizes the transformative power of literature. Of course, Shakespeare works remind us that literature is not only a form of entertainment, but a profound medium for introspection and understanding. I have been student of English literature in addition to economics and management, and I have studied poets like William Wordsworth, Keats, John Keats, Shelley, who defined poetry and brought our heartbeats closer to the rhythm. We all know that, in fact, I wanted to ask a question in the previous session, that John Keats in his timeless ode said, "A thing of beauty is a joy forever." And then his contemporary said, "Beauty is a 9 days wonder." I will leave this question over to you to give some thoughts over the musical evening or over whatever Dr. Ajay Sharma have planned you. This is quite they have given different views. जैसे हम कहते हैं, glass is half filled or half empty. A thing of beauty is a joy forever, and then the other poet said, beauty is a 9 days wonder. Similarly, Shelley in his 1821 essay, A Defense of Poetry, argued that poets are the unacknowledged legislators of the world. जैसे अभी मैम कैनी श्री कह रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने कोट किया डॉक्टर पांडे की, जो है मानव होना भाग्य है, पर लेखक या कवि होना सौभाग्य है। बहुत ऊंची बात कही उन्होंने अभी कुछ क्षण पहले। तो यही बात शैले ने भी कही कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा, ब्लेस सोल्स। लिटरेचर उन्होंने कहा हैज़ द पावर टू शेप एंड इन्फ्लुएंस सोसाइटी। जैसे डॉक्टर सतीश उपाध्याय कह रहे थे, इंटरनेट का ज़माना है, अब किंडल है, बुक है, लेकिन आई एम ऑल्सो लाइक हिम। जब तक वो अखबार पढ़ ना लें पेपर वाला और डायरी पे कुछ लिखना है तो हमें, और बुक्स भी लेते हैं, चाहे बाद में थोड़ा पढ़ें कम पढ़ें, उनका समरी ज़रूर पढ़ सकते हैं किंडल पे, लेकिन बुक किंडल पे बुक तो उसी किताब में ही पढ़ी जाती है, बुक मार्कर के साथ, जो खुशवंत सिंह लिखते थे। हम हर साल खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल भी पैटर्नाइज करते हैं बहुत साल से। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, 18, 19, 20 अक्टूबर को कसौली में होता है, आप ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा लिटरेरी, बहुत लोग आते हैं। तो वही यादें हैं खुशवंत सिंह जी की। अभी हमने उनका 10th डेथ एनिवर्सरी भी मनाया सुजान सिंह पार्क में, और वो सूफ़ी पोइट्री बहुत अच्छी लगती थी, तो उनकी याद में गाया, मैंने भी गाया और लोगों ने भी गाया और सुनने वाले भी सभी थे। William Wordsworth, as you know, poet of nature, believed that literature has the power to connect us with natural world. जो नेचर अभी ख़त्म हो रही है, अभी डॉक्टर सच्चानंद जी कह रहे थे मानसून की वेट हो रही है। यहाँ सब गर्मियों में ओले पड़ते हैं, मानसून में बारिश नहीं आती, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और ये सब। लेकिन इट वाज विलियम वर्ड्सवर्थ जिसने, सभी पोइट ऐसे और भी जो नेचर से कनेक्ट किया। आज तो आपको पता ही है कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद नेचर। एक
पंजाबी के भी पोइट थे डॉक्टर सतीश उपाध्याय जी, शिव कुमार बटालवी। उन्होंने तो पेड़ों में अपना अतीत खोजा। कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे मावा, कुछ रुख मेरे बाबे वांगण, पत्तर टावा टावा, कुछ रुख मेरी महबूबा वर्गे, चुम्मा ते गल लावा, फिर कहना मिठा अते दुखावा। तो ऐसे लोगों ने पेड़ों पे, आज कहाँ वो पेड़ों काट रहे हैं, पेड़ों पे अतीत ढूंढना और चलना। अब खुशवंत सिंह जी की बात कर रहे थे, यू नो, आई डोंट नो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, वी लॉस्ट हिम एट 99, नहीं तो सेंचुरी। व्हाट अ लाइफ। एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस पे खुशवंत सिंह जी ने नहीं लिखा। एंड व्हाट अ मैन, डिसिप्लिन मैन। उनकी डोर बेल पे लिखा रहता था डॉक्टर साहब कि डोंट प्रेस दिस बेल इफ यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। और उनका खाना, संडे को हम लोग जाते थे चाइनीज़ फूड पैक कराना, उनके घर ले जाना। फिर वो उनका भी ऐसे इक्वेस्टिक डोम था, क्योंकि सुजान सिंह पार्क में बहुत ऊंचे हैं, तो माइक वाइक तो नहीं होता था, लेकिन उन्होंने कहना विक्रम जी बुल्ले शाह सुनाओ, तो हमने भी गा देना, तो उसका बड़ा अच्छा वॉइस आता था। फिर उसके बाद 7:30 डिनर लगता था, बट 8 o'clock यू हैव टू बी आउट। दिस इज डिसिप्लिन। दैट्स व्हाई ही लिव्ड 99 ईयर्स। 92 93 तक तो टेनिस खेलते रहे, स्विमिंग करते रहे, 4 बजे उठते थे। कई, मेरे पास कई उनके पोस्ट कार्ड पड़े हैं। 4 AM कसौली, डियर विक्रमजीत, आई कैन नॉट कम, कीप इट अप, खुशवंत सिंह। दिस इज, अब ऐसे लोग, ऐसे पर्सनैलिटीज़ और ऐसे यू नो, दिस इज़ द लिटरेचर, दिस इज़ द लेगेसी। तो मैं कोई ऐसा पोइट तो नहीं हूँ, लेकिन सतीश उपाध्याय जी ने कुछ कहा है, मैं भी 2-3 आपको नज़में सुनाता हूँ, या नज़में नहीं, कुछ शेर सुना देता हूँ। एक तो ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कहा वो बहुत, जो मोटिवेशन, आज जो जैसे डॉक्टर सतीश उपाध्याय ने कहा कि मैं, इनका बहुत अच्छा, इन्होंने कहा हर पोइम में लिखता हूँ, लेकिन पोइम तो आज के हालात में आदमी मायूस भी हो जाता है, लेकिन आशावादी, कंक्लूड में आशावादी करता हूँ। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आपने सुना हुआ है, बट आई विल रीइंफोर्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep. Thank you. अब 2 अशार सुना देते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसे इनॉग्रेल सेशन में शेर व शायरी पर एक समा बांध दी। इन्होंने भी पोइम सुनाई, उन्होंने भी सुनाई, तो एक शेर आज ही मेरे जहन में आया। इसके बाद मैं 2 और शेर सुनाऊंगा। ये बहुत मानसून पे है, क्योंकि डॉक्टर सचन जी ने कहा, और बहुत ही काबिल गौर है। इजाज़त है डॉक्टर? कहीं फिसल ना जाऊं, कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ख्यालों में चलते चलते, कहीं फिसल ना जाऊं तेरे ख्यालों में चलते चलते, अपनी यादों को रोको साहिब, मेरे शहर में बारिश हो रही है। और एक बारिश पे कई है, पता नहीं माहौल, मैं सूफी हूँ वैसे, तो इस शेर पे मत जाइएगा कि भी कोई ऐसे हमारा, कई लोग मेरे को कहते हैं यू आर्टिफिशियल सरदार, बट एनी हाउ, पर वो बारिश का क्योंकि है तो मेरे को याद आ गया अपनी यूनिवर्सिटी का शेर। ये भी पढ़ रहे थे मोहतरमा, पोइम पढ़ रही थी, बहुत अच्छी, थैंक यू। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाए, ये हम यूनिवर्सिटी में यंग, अभी भी यंग हैं तो पढ़ते हैं, यादें हैं। मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, अभी उन्होंने मेरे को डॉक्टरेट दिया पंजाबी यूनिवर्सिटी। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाए, हर कली महवे ख्वाब हो जाए, गर तू आ जाए इस बारिश में तो कसम खुदा की ये बारिश भी शराब हो जाए। सॉरी इफ़ आई ब्रोक पॉर्टिकल। अभी मैंने एक गीत रिकॉर्ड किया है, ऐसे जैसे इन्होंने, हॉबी है हमारी, जैसे ये लिखते हैं, तो मैं सूफ़ी म्यूज़िक गाता हूँ, खुशवंत सिंह जी के यहाँ भी गाता था, तो उसकी मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, बहुत ही काबिल गौर हैं। ये पंजाब के एक पोइट थे, वी लॉस्ट हिम जस्ट फ्यू डेज बैक, डॉक्टर सुरजीत पातर, उनकी नज़म है, बहुत अनटाइमली वो चले गए। मैं तरन्नुम में आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं राहों पे
नहीं चलता मैं राहों पे, नहीं चलता मैं चलता हूँ तो राह बनते, मैं चलता हूँ तो राह बनते, युगों से काफिले आते, मेरे सच के गवाह बनते, मेरे सच के गवाह बनते, मैं राहों पे नहीं चलता मैं चलता हूँ तो राह बनते। आइए हम एक राह बनाएं दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, नाउमीदों के लिए, किसी की उम्मीद बने और हम सब, आप सब एक नया राह, एक नई पगडंडी, एक लेगेसी छोड़ के जाएं, सबकी हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहने। मैं सोच रहा हूँ अगर आज शाम अगर आप ना आते तो क्या होता। और ऑडियंस आपकी आवाज़ में आ रही है जी। मित्रों, just wanted to inform you that the 58th Gyanpith Award this year went to someone called Sampuran Singh Kalra. Would anyone know who is this man? Thank you. So it went to Guldar Sahab for Urdu and Jagat Guru Ram Bhadracharya got it for Sanskrit, the Sanskrit scholar. So can we have a round of applause for them, please? और जो हमारे बीच आज नहीं आ पाए उनके लिए मैंने सोचा मैं भी दो शब्द मंच के परमिशन से बोल दूं। गुलजार साहब का ही कोट है, कसूर उनका नहीं हमारा ही था, कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमारी चाहत ही इतनी थी कि उनको गरूर आ गया। ये उन लोगों के लिए जो शायद यहाँ नहीं आ पाए, और मुझे हमेशा लगता है कि जो किसी प्रोग्राम में नहीं पहुँच पाता है और शायद इस मंच इस बात को एक्सेप्ट भी करेगा कि शायद इट इज़ एंटायरली देयर लॉस। अब इतने बढ़िया और इतने अच्छे हमारे बीच स्कॉलर्स आए हेयर, सतीश उपाध्याय जी, डॉक्टर साहने, डॉक्टर जोशी, और हमारे बीच इतनी प्यारी ऑडियंस आई हुई है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सतीश उपाध्याय जी वॉज वांटिंग टू नो कि कल का क्या सेशन है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड, एंड शशांक इज ऑल्सो हेयर, ही इज गोइंग टू मॉडरेट अ सेशन टुमारो। तो टुमारो वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस, सतीश उपाध्याय जी, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। और so we have some bureaucrats who are going to be doing the poetry sessions, and then we have a poetry session in the end today. And tomorrow we have very interesting sessions. आज तो थोड़ा सा formality हो गया, but tomorrow we are going to have very very interesting sessions, starting with a book, a very explosive book, which is called Maya, Modi and Azad, Dalit Politics in the Time of Hindutva. ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और इसके अंदर हमारे पास सुधा पाई जी, सज्जन कुमार जो ऑथर है वो रहेंगे। उसके बाद एक रक्षंदा जी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आ गई है, लव इन द टाइम ऑफ हेट। दिस इज मोर ऑन हाउ वी कैन टॉक अबाउट coming cohesiveness during communal tensions. And then we have again a musical session followed with a very interesting book by Dr. R. Balasubramaniam, जिनकी किताब प्रधानमंत्री जी ने खुद रिलीज़ की थी, which is called The Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi. तो ये किताब भी कल 5 बजे बालासुब्रमण्यम साहब रहेंगे हमारे बीच, ही इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर. एंड देन वी हैव अ बुक बाय द डिप्लोमैट, जिनकी किताब बड़ी फेमस, एक हॉलीवुड फिल्म बनी स्लम डॉग मिलियनेयर, विकास स्वरूप, उनकी नई किताब आई है द गर्ल एंड 7 लाइव्स, वो भी कल हमारे बीच रहेंगे. और लास्ट में वी हैव द एवरीबडी इज वेटिंग टू मीट हर, द ग्रैंड ओल्ड लेडी, द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर मिस सुधा मूर्ति, हु इज नाउ also a member of parliament, and she has been a philanthropist. She is also the chairperson of the Infosys Foundation.
तो उनकी किताब के साथ हम कल कंक्लूड करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आज आ ही रहे हैं, बट बिलीव मी टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड थैंक ईच वन ऑफ यू एंड स्पेशली आवर डिग्निटरीज। लेकिन अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई डॉक्टर जोशी। तो आई नो जोशी साहब वांट्स टू लीव, बट आई रिक्वेस्ट सुप्रिया सूरी, he is our advisor, she is advisor to our Delhi Literature Festival. Are you there? Supriya, can you please come on the stage and present a plant as a momentary gratitude to Dr. Sahane. आइए मंच पे आइए सुप्रिया जी। एक जानकारी सिर्फ दे देता हूँ, चूँकि अभी आपने रश्मि रथी पढ़ी थी, इसलिए सिर्फ हम सबको मालूम होना चाहिए कि नीरज जी के अवसान के 50 वर्ष हुए हैं अभी। तो नीरज जी हमारे बीच, दिनकर जी हमारे बीच नहीं रहे, उसके 50 वर्ष अभी हुए। तो देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चे रश्मि रथी का सामूहिक पाठ करते हैं। और स्कूल के बच्चे यानी संख्या 10, 20, 50 नहीं है, सैकड़ों में है। रांची में एक कार्यक्रम हुआ जहाँ शायद 2-2.5 हज़ार बच्चों ने एक साथ रश्मि रथी का पाठ किया। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि दिनकर जी जो लेगेसी छोड़ गए हैं रश्मि रथी की, उसमें कई लोगों का यौवन उसको याद करते करते और बोलते बीता है। तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं, एक बार फिर से रश्मि रथी पढ़ें जैसा कि आपने कहा है, तो उसका फिर यहाँ भी दिल्ली में हम ऐसा ही सामूहिक पाठ कर पाएँ, ये हमारी इच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरूर सर, जरूर। विल बी इन टच विथ यू एंड विल बी ऑन ऑनर फॉर अस। वी आर ऑल फेलो बिहारीज। और हमारे आज 2-3 जो पोइट्स डिप्लोमैट्स हैं, अभय जी, मुकुल जी, दे आर ऑल फ्रॉम बिहार ओनली। सो इट विल बी एन ऑनर फॉर अस। एंड आई रिक्वेस्ट आवर एडवाइजर, फेलो एडवाइजर सुप्रिया सूरी जी टू फॉर्मली felicitate and thank, expression of gratitude. I'll request my brother Deepak Tanwar Valmiki ji, who is also a member of the SC committee, to please come on the stage and formally express your gratitude and thank Dr. Joshi. Thank you, Deepak ji. May I request our Chief Curator, Festival Curator, Ms. Meenu Agarwal, to please come on the stage and present a plant to our dignitary, Shri Satish Upadhyay ji, Honorable Vice Chairman, NDMC. तालियां बजाएं दोस्तों। साथियों, इसके साथ ये जो इनॉग्रल सेशन है इसको यहीं समाप्त करेंगे। वी हैव इंटरेस्टिंग सेशंस एज आई मेंशन टू यू, एंड आई विल एक्सप्रेस माय डीप ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर साहने, टू डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, एंड ऑफ कोर्स आवर elder brother Shri Satish Upadhyay ji, and all the audience. Thank you so much, sir, and hope to stay in touch with all of you and continue to promote the movement of literature festival in the future. Thank you so much. Plant.